Hello everyone, good evening. I welcome Dr. Sanskriti Both. She is a graduate from Odisha National Medical University and she has cracked her FMG exam in the first attempt in January 2024 with the 159 marks. Sanskriti, Good it's a evening, sir. pleasure to have you and we congratulate you and your family on this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. How are you and how is this result thing treating you? कैसा चल रहा है? Very happy just processing that doctor in front of me. Very happy. Okay. Yeah, so you were a student of RB3, Yes, sir. then offline, right? Yes, sir. Okay. How was the experience actually? Sanskriti, how did you come to know about MIST? And then when you joined, how was the overall atmosphere and your journey in Gautam Nagar? Mist, sir. I just invented Mist through Instagram when I was in my 5th year. Okay. Like, मतलब हमेशा से सुना है कि भाई इंडिया जाना है, कोचिंग करनी है. So I just saw a result FMG का. So I just saw कि which source they are using. So I just invented Mist. Okay. Then I asked my seniors, and everyone was like, Mist is best. Hmm. So I decided, okay, whenever the time comes when I need to join, I'll go with Mist only. It was pre-decided from my 5th year. Okay. So when I came, and in my last year, it was a war situation and Yeah, yeah, everything. So when I came back, so thought that let's start it, and I was very sure that I wanted to do offline only. Okay. So I joined the 5th August batch. Okay. So it was RB3, Hmm. which was very fun experience. I'm Ah, very thankful that I joined offline batch. okay. It was so means the new class, we got the new Yeah, class. It was yeah. fun. It was a wholesome experience for us also. I mean, seeing so many students sitting and Yes. teaching, so it was really good. So, कैसा मतलब you started there and then classes वगैरह का time वगैरह कैसा रहता था? कैसे time मिलता था पढ़ाई करने का and all that? Please elaborate. Since starting, it was like up to noon. फिर Hmm. धीरे धीरे it started from सुबह 9 to 7:30, 8:30. So I was just coping up with the timings क्योंकि इतना लंबा बैठने की आदत पहले तो कभी नहीं थी. बिल्कुल. तो पहले तो सिटिंग ही बनाना था इतनी बड़ी. तो धीरे धीरे वो आदत हो ही गई. घर जाके इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग, बट आई सेड कि इट्स ओके, वी हैव टू डू दिस फॉर सम मंथ्स. सो ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट. एंड क्लास आना वाज नॉट एट ऑल टायरिंग. इट वाज लाइक ओके, सुबह उठना है, क्लास जाना ही है, एक Okay. भी क्लास मिस नहीं करनी है. Okay. So you attended all the classes. ऑल द क्लासेस. So first checkbox ticked. यस. Second is that, how did you manage to do your self-study after the class? Because you were in the offline batch, so you had to manage other things also. इट वाज टफ. इट वाज टफ डूइंग सेल्फ स्टडी क्योंकि क्लास के कारण एक रूटीन था कि आना है, इतने घंटे बैठना ही है, टीचर्स हैं, आजू बाजू सब पढ़ रहे हैं, तो इट वाज वेरी इजी कि पढ़ना ही है. बट बिल्कुल. वापस जब सेल्फ स्टडी का आया तो इट वाज अ बिट टफ, बट आई स्टार्टेड धीरे धीरे घर पे सेटिंग. इट वाज वेरी बोरिंग बट इट्स ओके. Okay. सो आई स्टार्टेड इट. फिर धीरे धीरे वो सेटिंग बनती गई. और जो आप टाइम टेबल्स, टेस्ट शेड्यूल से मोस्ट प्रोबेबली जिसका टेस्ट है वाला पढ़ना है सब्जेक्ट, वो खत्म करना है, टेस्ट देना है, एंड डन विद इट, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट. तो कैसा जो ये पूरा प्रिपरेशन वाला तुम्हारा टाइम चल रहा होगा कि क्लासेस चल रही थी, तो क्लासेस के टाइम में तुमने बताया कि भाई क्लास आना है तो जाना ही है, टीचर क्लास जाने. आएंगे तो पढ़ना ही है, फिर रात को जाके उसको रिवाइज करना भी है, ट्यूसडे टेस्ट वगैरह सब दिए हैं. यस सर, बिल्कुल. मतलब प्रिपरेशन ना भी हो तो भी दिए हैं, बिकॉज आप कहते थे ना आपके वो ऑडियो आते थे. मैं तो जाते जाते ऑन द वे आई जस्ट यूज टू प्ले इट, और घर जाके टेस्ट देना है. नहीं भी आता है तो देना है. वो इसीलिए है बिकॉज वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन आप लोग ट्रेन तो हो जाओगे कि यस सर. एक बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ नई सी दिखती है कहीं पे तो उससे ही घबराहट हो जाती है. तो अगर हम यही कर पाए कि हम बार बार क्वेश्चंस के साथ साथ घूमें और एक बार प्रिपरेशन नहीं होगी, दो बार नहीं होगी, लेकिन फिर तीसरी बार ऑटोमेटिकली माइंड में ये चलता रहता है कि यार एग्जाम होगा ट्यूसडे को तो ये वाली क्लास अच्छे से ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट कुछ तो याद रहे कि आज जैसे और क्या हुआ. नहीं भी पढ़ा है तो एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो हमें याद है दैट वी जी. कैन सॉल्व इट.
यस यस, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग कि मतलब कई बार इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी सारी पढ़ाई हो गई एंड वी वर नॉट एबल टू रिवाइज एवरीथिंग, आप कुछ याद नहीं रहेगा अपने को। और ये हमेशा से ऐसा होता है कि बिकॉज एज द कंटेंट गोज इनसाइड द ब्रेन, नो, सो जैसे आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते हुए लगता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। जब तीन चार सब्जेक्ट हो जाते हैं और फिर आप एक्चुअली। 10 वाले सब्जेक्ट का सोचते हो तो लगता है अरे भाई सब भूल गए, बिकॉज बहुत दिन से नोटबुक उठाई नहीं है, तो विजुअल मेमोरी थोड़ा कम हो गई है और बच्चों को यस सर। लगता है आप भूल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन सामने आ जाते हैं तो लग जाते हैं। तो वो तो शायद एंड डे तक लगता है कि नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये नहीं नहीं, पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। मैक्सिमम मैसेजेस कि हमें कुछ नहीं आता, यू विल नॉट बिलीव दैट वी रिसीव और 1 day प्रायर टू द एग्जाम और 2 day प्रायर टू सर, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सभी भूल गए हैं। तो फिर सेम हम, सर। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि हर आदमी को अपने एग्जाम में जाने से पहले यही लगता है कि मेरे से बड़ा, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, कद्दू, और मुझे ही कुछ नहीं आता, बाकी सबको याद होगा। बट देन इट्स गुड, यू नो, यू पास्ड इट। तो लास्ट का जो प्रिपरेशन वाला क्लासेस के बाद वाले शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो संस्कृति, क्या किया उस टाइम में आपने? सर जो आप लोग का 45 डेज वाला एक स्केड्यूल आया था, मतलब नॉट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट, टाइमिंग्स मैंने सेम फॉलो किए कि इसको ऐसे ही पढ़ना है। सब्जेक्ट मैंने अपने हिसाब से चूज किया, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, बट टाइमिंग वो सेम कि इतना सब इसी को देना है। और पोस्टपोन होने के कारण काफी टाइम मिल गया रिवीजन करने का। मतलब सो उस मतलब बैच के लिए भगवान ने स्पेशली किया था वो। एक्चुअली सर आई रिमेम्बर कि वो नोटिस आया था ना, इमीडिएटली टेक्स्टेड यू, क्योंकि द लास्ट क्लास विथ यू ओनली एंड यू सेड कि बस पोस्टपोन होता है। आई वाज विशिंग, बिकॉज आप लोगों का बैच बहुत ही प्यारा बैच था, और मतलब वहाँ पे लगता था कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बिकॉज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो हमको भी लग रहा था कि यस यार सर। थोड़ा सा इन बच्चों को टाइम मिल जाएगा तो दे विल डू ट्रिमेंडसली वेल, एंड गॉड लिसन टू ऑल द प्रेयर्स, आप एक्चुअली। लोगों की, आपके पेरेंट्स की, हमारी भी, एंड यू नो एग्जाम गॉट अ लिटिल डिलेड, एंड द रिजल्ट आल्सो विद RP3 इज वेरी गुड, सो वेरी वेरी गुड। ऑल थैंक्स टू मिस्ट। No, it all is, all thanks to universe actually. Everything falls in place. एवरीथिंग वर्कड इन फेवर। Yeah, yeah. We did our part, and we are very thankful that you acknowledge that, and you did your part, which was the maximum in this. क्योंकि गाइड हमारी तरफ से तो गाइडेंस है, आपको उसको अप्लाई करना है। सो एप्लीकेशन इज ऑलवेज मोर मोर इम्पोर्टेंट। यस। सो यू अप्लाई, दैट इज वेरी वेरी वेरी। अच्छा ये बताओ कि मॉक वगैरह दिए थे? मॉक सर मैंने मिस्ड के जो ग्रैंड टेस्ट हुए थे, द हम्म फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट आई मिस्ड। हम्म। सो जो सेकेंड ग्रैंड टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरे 186 समथिंग आए थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ओके है, बन रहा है। तो मैंने मिस्ट के ही ग्रैंड टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज पूरी मिस्ट की ही फॉलो की थी, और जस्ट थोड़े बहुत MCQs फ्रॉम द बुक्स एंड एवरीथिंग। ओके। और जब रिजल्ट आया उस दिन क्या कर रही थी संस्कृति आप? सर एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड ओनली, एंड एकदम ऊपर नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है। आई वाज जस्ट शिवरिंग, क्योंकि आई वाज नॉट एट और श्योर कि, मतलब डाउट था अभी भी कि शायद नहीं होगा। मन में रहता है। So I just gave my roll number to my friend कि you see and tell me. So she just saw and she told me, and I immediately called my father and everyone was so happy. कहाँ थे रिजल्ट के टाइम पे? कहाँ थे? कहाँ घर नहीं थे? I was at home only, so ओके ओके। तो फिर उसके बाद एकदम पार्टी वाला माहौल हो yes गया। sir, बिल्कुल। ओके। और जो ये मतलब एक होता है ना कि हम मेहनत करते हैं और फिर हमें एक आउटकम चाहिए होता है, और फिर Yes जैसे कि हम लोग बात किया करते थे कि एक बार एग्जाम निकलेगा तो उसके बाद कैसे सब चीजें, माहौल चेंज होगा चारों तरफ, पापा मम्मी कितना खुश होंगे। तो actually। वर यू एबल टू फील दैट विद द यस रिजल्ट? सर एक्चुअली, वो जो अपन बैठ के आप बोलते थे ना, वो जो पास होगा साइड में, इट विल गिव यू दैट हैप्पीनेस, सेम एग्जैक्टली सेम। मतलब तब बैठ के सुनने में ऐसा लगता था कि काश ये वाला मोमेंट आ जाए, और जब वो एक्चुअली आया तो इट वाज वेरी बियॉन्ड वर्ड्स। मतलब वैसे सेंटेंस तो ये है कि व्हेन यू सी ऑल दैट
तो इट इज ऑल वर्थ इट। जो हार्ड वर्क हुआ, Yes, जो sir. दर्द Definitely. हुआ, जो रोना आया, वो सब वर्थ इट था फिर उस चीज के लिए। Yes, sir. लेकिन एक्चुअली वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है वो, मतलब दीज आर सम दोस काइंड ऑफ मेमोरीज Well, व्हिच if it is 150 also, it's is equal to 300. That's यस यस it. व्हाट मैटर्स इज, भाई इसका तो नाम ही क्या रखा हुआ है, द नेम ऑफ द एग्जाम इज जस्ट द स्क्रीनिंग एग्जाम। Yes, सो sir. टेक इट दैट वे, ऑब्वियसली इफ यू आर स्कोरिंग गुड इट्स गुड, बट देन द मेन एम इज टू गेट 150 and Yes. just it. That's it. So Sanskriti, it was very nice talking to you, and Thank you. thank you So for giving just a minute, my time. parents are Yeah, here. yeah, please, They please, want to thank you. please, 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 please. सर नमस्कार। Sir, namaste, sir. Many, many congratulations. Auntie, namaste. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बिल्कुल एक ही बार में बेटी की नैया पार कर दी है। नहीं, नैया पार करने वाले तो ऊपर बैठे हैं, बट ये है कि मेहनत काम कर गई वो सर बहुत आप इतना अच्छा गाइडेंस रहा, और उसने जो उसको 1 मंथ जो मिला सर, उसने बहुत जबरदस्त पढ़ाई, मतलब हमने सिर्फ लंच या डिनर के लिए वो उठती थी, बाकी उस बहुत मेहनत करी। और आप लोग भी बहुत तारीफ करती है कि सर लोग ने इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत अच्छा आनंद आया उसमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सारी चीजें चारों तरफ से सही होनी चाहिए, तभी कोई एक काम बनता है। तो भगवान की कृपा, आप लोगों का इसके ऊपर आशीर्वाद, हमारी थोड़ी सी गाइडेंस और इसकी बहुत सारी मेहनत, इसका बहुत मेहनत। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू। नमस्ते।